Hello students, my today's lecture is on disability, death and dying. Developmental disabilities are a group of conditions due to an impairment in physical, learning, language or behavior areas. These conditions begin during the developmental period. They impact day-to-day functioning and usually last throughout a person's lifetime. ये जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ये इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विकासात्मक डिसेबिलिटी, आई डोंट नो। तो ये जो होती हैं, ये हमारे जो विकास को या डेवलपमेंट को बहुत निगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। इनमें हमारे मोटर एरियाज़ अफेक्ट हो सकते हैं, या हमें कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, या सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या फिज़िकल इम्पेयरमेंट है, ये डिपेंड करता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, या ब्रेन के कुछ ऐसे एसोसिएशन एरिया में प्रॉब्लम है, या मोटर एरिया में प्रॉब्लम है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड, these developmental disabilities occur. Developmental disabilities cause individuals living with them many difficulties in certain areas of life, especially in language, mobility, learning, self-help and independent living. ये मेजर और प्राइम एरियाज़ होते हैं जिनमें डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं। ये लैंग्वेज के एरियाज़ हो सकते हैं, मोबिलिटी मतलब चलने फिरने में, लर्निंग सीखने में प्रॉब्लम होती है, सेल्फ हेल्प हम मतलब उस लायक भी नहीं हो सकते हैं कि हम अपनी खुद हेल्प कर सकें, एंड इंडिपेंडेंट लिविंग मतलब इतनी डिसेबिलिटी होती है दैट अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ विदाउट द सपोर्ट ऑफ हिज सिग्निफिकेंट अदर्स. So developmental disabilities can be detected early on and persist throughout an individual's life span. और जो ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाती हैं, तो इनमें चांसेस होते हैं कि कुछ मेडिकेशन के थ्रू या कुछ सर्जरीज़ के थ्रू उनमें मतलब इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस होते हैं इफ़ दे आर डिटेक्टेड अर्ली इन द लाइफ स्पैन ऑफ द इंडिविजुअल. But if they are not detected early, and if the problem is so severe that it cannot be resolved, a person has to live with that particular disability throughout his life. Being healthy means the same thing for all of us, getting and staying well so we can lead full active lives. Some health conditions such as asthma, gastrointestinal symptoms, eczema and skin allergies and migraine headaches have been found to be more common among children with developmental disabilities. Thus, it is especially important for children with developmental disability to see a health care provider regularly. और ये जो आपकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड हों, ये हमारी स्किन से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, ये हमारी स्किन की एलर्जीज़ हो सकती हैं, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटेड टू अवर लंग्स. सो ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ might be having different or various forms. So a proper medical care is needed at right from the beginning of the child's lifespan. Physical disabilities are categorized into groups. The main physical disability groups are musculoskeletal and neuromusculoskeletal disability. Now we will focusing on these types of disability. First, focusing on musculoskeletal disability. It affects the joint. Musculo means related to muscles, skeletal means related to the bones. So it affects the joints, bones and muscles, and includes loss of deformity of limbs, osteogenesis imperfecta, that is brittle bone disease, and muscular dystrophy, that is muscular weakness. These disabilities result in an inability to perform movement of body parts due to deformities, diseases or degeneration affecting the muscles or bones. तो ये जो ग्रुप है आपका डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का, जिसे हम मस्कुलोस्केलेटल कहते हैं, इसमें जितने भी हमारी डिजीज़ेज़ होती हैं ये मसल्स और बोन्स से रिलेटेड होती हैं. बोन की कोई बीमारी हो सकती है, या मसल्स की वीकनेस हो सकती है. उस वीकनेस की वजह से द इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू वॉक, या वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है, या उसकी ग्रिपिंग बहुत वीक है, या उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं है, या पेन होते रहते हैं, या मस्कुलर स्ट्रांगनेस नहीं है.
तो ये जो मस्कुलर स्केलेटल का ग्रुप है, इट फोकसेस ऑन द मस्कुलो स्केलेटल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल, एंड इफ देयर इज सम डिफॉर्मिटीज, that means the person is suffering from the this particular disability group. Second is neuromusculoskeletal disability. It is defined as the inability to move affected body part due to disease, degeneration or disorder of the nervous system resulting in physical disability. Conditions that fall under neuromusculoskeletal disability are cerebral palsy, spina bifida, stroke, spinal cord injury, head injury and poliomyelitis. तो ये जो दूसरा ग्रुप है ये न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटी है, मतलब इसमें मस्कुलर डिसेबिलिटी होगी बट दैट माइट हैविंग इट्स रूट इन द नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम की वीकनेस की वजह से या डीजेनरेशन की वजह से क्या बीमारियां होती हैं उनके बारे में इस क्लास के अंतर्गत बताऊंगी. पहला है आपका सेरेब्रल पैलिसी. Cerebral palsy occur in young children and is a group of non-progressive disorders that damage the brain, causing impairment of motor function including associated disabilities such as intellectual and behavioral. सेरेब्रल पैलिसी में बेसिकली जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से मोटर फंक्शंस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और एसोसिएटिव डिसेबिलिटी हो जाती है. पर्सन इज़ नॉट एबल टू एसोसिएट डिफरेंट थिंग्स एंड ही इज़ नॉट एबल टू द इन्फर द मीनिंग ऑफ डिफरेंट sentences or different situations happening in his or her life, and intellectual and behavioral problem. दिस इज़ नोन एज द क्लास ऑफ सेरेब्रल पैलिसी. और ये उसके ब्रेन के किसी पार्ट में डैमेज होने की वजह से या उसके डीजेनरेशन की वजह से होता है. सेकेंड इज स्पाइना बाइफिडा. स्पाइना बाइफिडा इज व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए बेबीज स्पाइनल कॉर्ड resulting in a gap in the spine causing spinal nerves to be exposed. The developmental defect of the spinal canal may cause paralysis of the lower part of the body. ये जो है जो फर्स्ट वाला था उससे बिल्कुल स्पाइनल पैलिसी उससे बिल्कुल अलग है. वो ब्रेन के पार्ट को डैमेज होने से होता था, और ये जो स्पाइना बाइफिडा है एज इट इज़ नेम इम्प्लाइज इट इज़ रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड. जब स्पाइनल कॉर्ड में गैप होता है तो उसका कुछ सर्टेन एरिया एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से इस डिफेक्ट की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्टिव होता है उसकी वजह से द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू स्टैंड अप ऑन हिज ओन फीट. ज़िंदगी में वो कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है और उसके एक टाइप का पैरालिसिस हो जाता है इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सीरियस डिजीज़. Third is acquired brain injury. Acquired brain injuries are due to damage to the brain after birth and can be caused by a wide range of factors including stroke, head injury, alcohol, drugs, lack of oxygen, or various diseases such as cancer. This can cause the person to find it difficult to move certain parts of their body and struggle with daily activities. जैसा इसके नाम से क्लियर है, दिस इज़ एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी. ये जन्म के टाइम पे नहीं होती है. दिस इज़ ऑल्सो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. दिस ब्रेन इंजरी इज़ एक्वायर्ड, मतलब ब्रेन इंजरी किसी न किसी तरीके से हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेन का सर्टेन एरिया डैमेज हो जाता है जन्म के बाद. और ये बहुत तरीक़ों से हो सकता है, जैसे किसी के स्ट्रोक आ जाता है या हेड इंजरी हो जाती है, कभी एक्सीडेंट में हेड इंजरी हो जाती है, या एक्सेसिव अल्कोहल या किसी ड्रग्स की वजह से, या किसी को फीवर की वजह से भी हो जाता है. ब्रेन फीवर हो जाता है, फीवर बहुत तेज़ होता है तो ब्रेन फीवर हो जाता है जिसकी वजह से, और कभी कभी ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जब ब्रेन का कोई सर्टेन एरिया डैमेज हो जाता है तो सर्टेन डिजीजेज रिलेटेड टू द डेवलपमेंटल टास्क अकर्स इन द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जिसकी वजह से इंडिविजुअल अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाता है. उनमें उसको या तो पैरालिसिस हो जाता है, फुल पैरालिसिस या पार्शियल पैरालिसिस, because of which that person is not able to move that particular limb or part of the body. Next is spinal cord injury. Spinal cord injuries can result in total or partial impairment of sensory and motor functions in the body and limbs.
A spinal cord injury can lead to paraplegia and tetraplegia. Paraplegia affects the lower limbs and result in a loss of movement and bowel and bladder control. And tetraplegia is a paralysis affecting both arms and legs, resulting in total impairment of sensory and motor functions. ये स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इंजरी होती है और ये दो टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया है. जो पैरापेल्जिया है ये सिर्फ लोअर पार्ट को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाता है, और जो मेन प्रॉब्लम होती है वो बॉवल या ब्लैडर कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है कि द पर्सन इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल हिज बॉबल मूवमेंट एंड नॉट एबल टू कंट्रोल हिज ब्लैडर. टेट्रापेल्जिया जो होता है इसमें लोअर पार्ट या अपर पार्ट, मतलब उसके हाथ या जो नीचे का पार्ट है, दोनों ही अफेक्ट हो सकते हैं, और इसकी वजह से सेंसरी और मोटर फंक्शनिंग टोटली इम्पेयरमेंट मतलब उनका हो जाता है. द पर्सन इज़ नॉट एबल टू perceive anything or do any functional thing with his limbs, either it is leg or hands. Next is epilepsy. Epilepsy is a neurological condition that causes a person to have a tendency to recurring seizures. There are many types of epilepsy which range in severity and each person with epilepsy experience it differently. Epilepsy में अचानक दौरे आने लगते हैं, ब्रेन्स में जो न्यूरॉन्स के कनेक्शंस होते हैं उनमें कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जिनकी वजह से उन्हें सीजर्स आ जाते हैं, बेहोशी, और ये दौरे कभी भी आ जाते हैं. द पर्सन इज़ नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दिस. जो इसके पेशेंट्स होते हैं, अगर इनके एपिलेप्सी के सीजर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो दे आर क्वाइट नॉर्मल. तो ये ड्राइव भी करते हैं और इंडिपेंडेंट लाइफ भी लीड करते हैं, अच्छी जॉब्स में भी होते हैं, लेकिन अगर ये ड्राइव कर रहे होते हैं तो अचानक से ही अगर इन्हें सीजर्स पड़ जाते हैं तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है. क्योंकि ये जो सीजर्स होते हैं इनका कोई टाइम नहीं होता है कि ये किस टाइम आएंगे और किस टाइम पर्सन को अटैक पड़ जाएगा. तो मतलब ऐसे लोगों के लिए जिनके ऊपर एपिलेप्सी के सीजर्स आते होते हैं, इट इज़ सजेस्टेड नॉट टू ड्राइव बिकॉज दैट इज़ नॉट सेफ फॉर देयर हेल्थ. Next is multiple sclerosis. Multiple sclerosis is a condition affect a person's brain and spinal cord, causing a range of physical problems including movement, sensation and balance. Multiple sclerosis lasts for a person's whole life and cause severe disability. ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये पर्सन के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को अफेक्ट करता है. अभी हमने कुछ जो आपको बीमारियां बताई जो कुछ स्पाइनल कॉर्ड से टिपिकली रिलेटेड थी और कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थी, लेकिन ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है इट इज़ रिलेटेड टू बोथ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. और इसमें बहुत से टाइप की फिजिकल प्रॉब्लम होती हैं, जैसे क्योंकि अगर हमारा ब्रेन अफेक्टेड है तो ब्रेन में हमारे एसोसिएशन एरियाज़ हैं, ऑडिशन एरियाज़ हैं, विजुअल कॉर्टेक्स है, इस टाइप से, और जो ये हमारे सेंसेशन और जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ऑपरेट होते हैं. तो इसमें एक देयर इज़ अ लार्ज रेंज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी बिकॉज बोथ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम आर गेटिंग अफेक्टेड बाय मल्टीपल स्क्लेरोसिस. और ये जिस पर्सन को होता है वो लाइफ लॉन्ग इसके सिवियर इफ़ेक्ट्स को उसे फेस करना पड़ता है. Next is arthritis. Arthritis comes in many forms and causes pain and inflammation in joints and can affect children as well as adults. The most common form of arthritis is osteoarthritis, which affect the smooth cartilage lining of the joint, making movement more difficult and cause pain and stiffness. आर्थराइटिस जैसा हम सबको पता है हड्डियों की बीमारी होती है. इसमें कई टाइप की होती हैं, जैसे एक इन्होंने बताया है ऑस्टियो अर्थराइसिस. इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है जिसमें हड्डी बहुत वीक हो जाती है. ऑस्टियो अर्थराइसिस इसमें स्टिफनेस हो जाती है जिसकी वजह से जो जॉइंट का मूवमेंट होता है वो बहुत पेनफुल होता है या होता ही नहीं होता है. तो अर्थराइटिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम. नाउ that is all for the first section, that was developmental disabilities. Now I am moving towards the second section of my lecture, that is death and dying. Now this is very important to know what is the meaning of death and dying. Death is a natural process and one that comes to us all. Hospice is a unique form of support for the patients and patients' loved one with the goals of easing pain and discomfort and providing spiritual and emotional support. Studies have shown that patients live longer when they receive support and care
from hospice than other patients with the same prognosis who do not opt for hospice. तो डेथ एंड डाइंग के बारे में फर्दर प्रोसीड करने से पहले ही जानना ज़रूरी है कि जो डेथ है दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. अगर बर्थ है तो डेथ भी होनी निश्चित है, लेकिन जो इसका एक रेगुलर साइकिल है कि मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं या किसी को ऐसी सीवियर बीमारी है जिसकी वजह से उसका लाइफ स्पैन उतना बड़ा नहीं होता, मतलब एवरेज लाइफ स्पैन नहीं होता है, वो जल्दी मर जाता है. तो अगर हम इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें और नॉर्मेटिव पैटर्न पे चलें तो उस पैटर्न को इंटरप्रेट हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इन द कि फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन जो हमारा एवरेज नॉर्मेटिव पैटर्न है जिसमें हम अपने लाइफ स्पैन को एवरेज 60-70 ईयर्स का मान के चलते हैं, उसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेथ एंड डाइंग. नॉट फॉर द एक्सेप्शनल केसेस जिसमें कोई बीमारी होती है तो जल्दी डेथ हो जाती है, या जिनमें डीजेनरेशन की बीमारी होती है तो सेल्स जल्दी डीजेनरेट हो जाते हैं तो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेथ एंड डाइंग इम्प्लीमेंट नहीं होती है, या जो एक्सीडेंटल डेथ होती हैं, वी आर नॉट डीलिंग विद दीज टाइप ऑफ डेथ. वी आर डीलिंग विद द normative pattern of the death which expects the life span as above 70. So एक प्रोसेस होती है जिसे हम हॉस्पाइस कहते हैं. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हॉस्पाइस? इसमें हम जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एल्डरली इंडिविजुअल्स होते हैं, बीमार होते हैं, उनको हम इमोशनल सपोर्ट देते हैं, स्पिरिचुअल सपोर्ट देते हैं, जैसे मतलब दवा के साथ साथ में उनको एक मॉरल सपोर्ट देते हैं, उनको एक मीडियम देते हैं जिसके सामने वो अपनी सारी कैथारसिस कर सकते हैं. तो ये स्पिरिचुअल ग्रुप होते हैं जिन्हें हम हॉस्पाइस कहते हैं, और ये पेशेंट की रिकवरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं. और जो स्टडीज़ हुई हैं वो ये बताती हैं कि अगर दो पेशेंट हैं, एक को ये थेरेपी मतलब दी गई और दूसरे को सिर्फ केमोथेरेपी या ड्रग थेरेपी दी गई है, तो जो इस टाइप के पेशेंट होते हैं जिन्हें हॉस्पाइस अवेलेबल होता है, दे लिव लॉन्गर एज कम्पेयर टू द पेशेंट हु डू नॉट रिसीव इट. The reason behind this is the moral support they are receiving for the person who are supporting them spiritually and morally. And now there are various signs of dying. जो dying जो होती है, it is a gradual process. It does not happen all of a sudden. Dying के कुछ ना कुछ साइंस होते हैं, जैसे लाइफ के साइन होते हैं कि प्री नेटल डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट वीक में ये, सेकेंड वीक में ये, 9 मंथ्स में ये. तो ग्रेजुअल उसके सिम्टम्स होते हैं. तो जैसे लाइफ के सिम्टम्स होते हैं वैसे डेथ के भी या डाइंग के भी सिम्टम्स होते हैं. तो चेंजेस इन द वे द बॉडी वर्क्स आर ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द डाइंग प्रोसेस. योर हॉस्पाइस केयर टीम कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट चेंजेस टू एक्सपेक्ट एंड हाउ द पेन एंड स्ट्रेस ऑफ डाइंग कैन बी मिनिमाइज. जो ये हॉस्पाइस का ग्रुप है ये क्या करता है? ये हमें मॉरल एंड इमोशनली और स्पिरिचुअली सपोर्ट करता है, एंड ये हमें प्रिपेयर करता है कि व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट इन आवर फ्यूचर लाइफ, कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, कि व्हाट आर द साइंस ऑफ डीजेनरेशन, और किन किन चीज़ों के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. सम ऑफ द नेचुरल चेंजेस दैट अकर इंक्लूड लेस एपेटाइट और इंटरेस्ट इन फूड, लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बॉवल कंट्रोल, चेंज इन कलर और कंसिस्टेंसी, ब्रीदिंग रेट, body temperature, skin appearance, mental state of behavior, sleeping more or being unresponsive. मतलब जो नॉर्मल पैटर्न होता है स्लीप का वो चेंज हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाती है, ब्रीदिंग रेट बिकम्स हायर, स्किन अपीयरेंस, स्किन में पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो स्किन डार्कर होनी शुरू हो जाती है, ब्लैडर एंड बॉवल कंट्रोल जो होता है वो लेसर होता जाता है, उतना ज़्यादा ब्लैडर एंड बॉवल मतलब वो अपने मोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते. तो दीज आर द ग्रेजुअल सिम्टम्स ऑफ डेथ एंड डाइंग. या हम इन्हें एजिंग के भी सिम्टम्स कह सकते हैं. तो मेन एंड विमेन में ऑन द बेसिस ऑफ some survey, some 5 leading causes of death are identified. तो ये जो डेथ एंड डाइंग की प्रोसेस है ये बताना चाहते हैं कि इट इज़ अ नेचुरल एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. डेथ इज़ द अल्टीमेट ऑफ द लाइफ, कि अगर हमने जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित आनी ही आनी है, लेकिन उस डेथ को हम कैसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं
और कैसे हमारी लाइफ स्टाइल में हम क्या चेंजेस करें कि डेथ हमारी ग्रेसफुल तरीके से हो और हम अपने लाइफ के ईयर्स को और इंक्रीज़ कर सकें और इन्हेंस कर सकें। हम कैसे पॉजिटिव रहें, कैसे हम योगा एंड मेडिटेशन के थ्रू, कैसे हम पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू, कैसे हम अपनी कैथारसिस के थ्रू, कैसे हम अपने सपोर्ट सिस्टम के थ्रू अपनी एजिंग को और आसान कर सकते हैं और वी कैन लीड अ बेटर एंड पॉजिटिव लाइफ। The 5 leading causes of death for men are ischemic heart disease 14.3% of all male deaths। मतलब 14.3% जो मेल की डेथ्स होती हैं वो हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं। डिमेंशिया एंड एल्जाइमर्स डिजीज़ की वजह से 7.9%, भूलने की बीमारी जो होती है उसकी वजह से 7.9%, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड लंग 6.4%, chronic lower respiratory diseases 6.2%, and cerebrovascular diseases 5.6%। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो डेथ होती हैं वो हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं और जो सबसे कम कॉज है डेथ का मेन में दैट इज़ cerebrovascular disease, that contributes only 5.6% of the male death. Now the 5 leading causes of death for women: dementia and Alzheimer's disease 15.2%, ischemic heart disease 8.8%, cerebrovascular disease 7.5%, influenza and pneumonia 6.1%, and chronic lower respiratory disease 6%। तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो इंटायरली डिफरेंट है पैटर्न। मेल्स की जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है वो हार्ट डिजीज़ की वजह से होती है और फीमेल्स की डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स की वजह से होती है। और उनकी लोएस्ट जो होती है मेल्स की वो होती है सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज़ की वजह से और फीमेल्स में क्रॉनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज़ की। दैट कंट्रीब्यूट्स ओनली 6% ऑफ द टोटल fatal rate of women. So that was all for today's lecture on death and dying. I hope that is clear to you all, and that is all for today. Thank you.